लेकिन जब हम उनको अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं, उनके विचार सुनते हैं, उन विचारों को सुनकर जब हम एक जगह पे उनको लेकर आते हैं तो चीज़ें अलग दृष्टिकोण से दिखती हैं। जब हमने इस संवाद को शुरू किया तो हमने 3 चीज़ों को फोकस किया। हमने सोचा कि भारत के अंदर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरा, हमने सोचा कि ऑब्स्टेकल्स क्या है। और जब आप अपॉर्चुनिटी और ऑब्स्टेकल्स की बात करते हैं, ऑब्स्टेकल्स की जब बात आती है तो सॉल्यूशन की बात भी हमारे बीच से ही निकल कर आनी चाहिए, इसलिए संवाद की जरूरत है। हम सब आज यहाँ जो जुटे हैं, जो इस संवाद करने के लिए जुटे हैं, चाहे हम किसी फील्ड में हो, चाहे हम एकेडमिशियन हो, चाहे हम बिजनेस कम्युनिटी से हो, चाहे हम रिसर्चर हो, लेकिन हम सबके मन में एक बात हमेशा रहती है कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। और हमारा देश रहेगा तो निश्चित रूप से जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी सोच है, जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की सोच रखते हैं, जो इंडिया 100 की बात करते हैं, वो निश्चित रूप से हम उसको लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास भी है। और आप लोगों की उपस्थिति को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इस संवाद से हम एक निचोड़ रखेंगे। और हमारे बीच में हमारे अतिथि श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, मेंबर ऑफ राज्यसभा, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हैं। मैं उनका आग्रह करूंगा कि उनका बहुत बहुत स्वागत है। We are here for Retail Samvad. All of you are well versed with the economics of this subject, and also since you are also having the practical experience that how the various nuances of economic development are going on in this country, I just want to put forth 2 or 3 points that what was the scenario and how the scenario has changed and where the scenario is going to be. I would like to remind in 2013 July, I went to US along with then party president and present defense minister Shri Rajnath Singh. The atmosphere there was so gloomy about India, and it was a phrase used in their circle. The situation has changed, and now except for few jobs, means whether you go for the topmost IS, IPS or the lowermost jobs. Other than this, the private sector is having much more better job opportunities, much more better package and growth opportunities for any individual. Now, the second stage mindset is to be changed, that everybody should not become a job seeker. Even if he or she as one of the very elementary level of economic strata. So that's why this Mudra Yojana was undertaken. If 34 crore people have taken loan, small loans in Mudra Yojana, whether people say they have, most of them have taken around 50,000 or so on an average, some have taken. But if you consider just half, and even if you become very conservative, say just 1/3 have created one single job, it means some 12 crores job has been created. That's how the situation has started transforming at the grassroots level. Now come at the medium level. In MSME, you all are well aware that the first thing that the government has taken, that they have changed the definition of the MSME. Now small, medium and micro is having the turnover of 10, 50 and 250 crore. So that even if the country is going and somebody has achieved a threshold, that company should not be out of the ambit of the MSME. And not only this, we have also made a decision that previously what happened कि किसी MSME sector ने चीज़ को मेहनत करके वहाँ तक पहुँचाया, suddenly the global players have come in and they cannot compete. So the government has made a rule that till it is up to 200 crores, there is no need of any global tender. Global tenders will only be above 200 crores. So that our micro, small and medium entrepreneurs, if they have achieved something, they should be allowed to get the result of that also.
It should not be कि उन्होंने पूरा किया और फिर बाहर से आ गए. Then you come at the higher level. I just want to give an example. If you have you ever thought that India was capable of sending the Mangalyaan and Chandrayaan, but not capable of making, forget about the fighter plane, even a civilian plane. India was capable of making intermediate, even long-range ballistic missiles, but not capable of making assault rifle. Does this thing sounds logical? So, I'm not going into the political aspect of that, why it was not done. But one thing was very clear, that we were having capability, but we were not interested in doing so. So, at the top level, government has taken a stand that we will make India self-reliant in defense production. And this is one of the biggest achievement of this government. Now the assault rifles are being made. For the first time, the intermediate range ballistic missile BrahMos is being exported, and Philippines has become the first country which has ordered an export for the BrahMos missile of India. And after that, if you remember, technological capabilities के बारे में 2019 का इलेक्शन था, in the month of April, एक मैसेज आया था कि 12 बजे प्राइम मिनिस्टर राष्ट्र के नाम संदेश देने जा रहे हैं. सब लोग घबरा गए थे, अब की बार पता नहीं क्या होने वाला है, कौन सा संदेश देने जा रहे हैं. बट आप में से शायद बहुत लोगों को ध्यान है कि वो उन्होंने बोला क्या था. उन्होंने ये बताया था कि अर्थ की लोअर ऑर्बिट में मूव करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिसाइजली डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी इंडिया ने हासिल कर ली है, एंड वी हैव बिकम जस्ट द 4th country in the world. And what is the use of this technology? That if a nuclear warhead has been thrown over the country, और आप में से पता होगा अगर कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से छोड़ा जाता है तो it goes in the space and then comes, it takes around 28 to 30 minutes to reach the target. But if you are having the capability in the lower orbit of the earth, you can destroy it even in the space before it entered into your atmosphere. अब ये capability, just I want to give an example कि how the technological capabilities have been built up. You have just seen that the light combat helicopter, India got the capability. You have seen that the INS Vikrant, that is aircraft carrier, it has been totally indigenous developed. So this is to be the highest level. And come another thing, just one example. If we want to become a developed country, one of the foremost requirement is power, energy. And if we are focusing on conventional energy, as you all must be knowing that 40% of the energy comes from coal. But if we want to attain our target by this type of energy, then there will be a huge impact on the environment. So we have focused on the solar energy and non-conventional energy, and right now the situation is that 25% of the utilization and 40% of the installed capacity is from non-conventional source. And in solar, we are targeting that we have to attain 300 gigawatt by 2030. This might have been thought by some of the government that we should focus on the solar energy and others. But our government has undertaken those things which never would have been thought by anyone. For example, solar energy पे तो सोचा होगा, मगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनेगा गुरुग्राम में, ये किसी ने नहीं सोचा होगा. So we become the leader. And now if we have become a leader, it is not just by the sheer size of ours or sheer consumption of ours. हम जो सोलर एनर्जी के सोर्स बनेंगे, उसके लिए अगर आप ध्यान दें तो अभी गुजरात में प्राइम मिनिस्टर ने जो मोढरा विलेज को इनॉग्रेट किया है, तो उस विलेज में तो सब कुछ सोलर एनर्जी से होगा ही. मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स आर हैविंग सोलर पैनल्स, और वहीं पर सूर्य का मंदिर भी होगा. इट मीन्स we represent that we are that type of civilization which was having the capability and we were having the sincerity about the nature जो हमको समझाने की कोशिश की जाती है वेस्ट के द्वारा. वो सारी चीज़ें हमें बहुत पहले से पता थी. एक छोटा सा एग्जाम्पल कहता हूँ. West has become aware about the environmental protection from 1992 Rio de Janeiro Earth Summit, then 97 Kyoto Protocol, 2009 Copenhagen, 2016 Paris, अब ये COP22 अभी जो
ग्लासगो में हुआ था। हमारे यहाँ तो आप जाके देख लीजिए, ऋग्वेद का पृथ्वी सूक्त पढ़ लीजिए, जो अर्थ समिट का रेजोल्यूशन है उससे 1-2 पॉइंट ज्यादा ही है, उसमें कम नहीं है। अब एक ऑन द लाइटर नोट सोलर एनर्जी पे कहता हूं, हमने पढ़ा ना कि 7 फ्रिंजेस होती हैं विद योर, एवरीबडी वुड हैव स्टडीड ड्यूरिंग द स्कूल। ये बताइए जितने सूर्य के मंदिर में जाते हैं, सूर्य के घोड़े कितने हैं? 7 ही है ना। ये तो हमारे यहाँ हजारों साल से था, बट वी हैव बिकम अ कैप्टिव ऑफ द माइंडसेट। सो प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस अमृत महोत्सव लास्ट 15th of August 22, he has said 5 प्रण। which are the 5 प्रण? Number 1, we have to make India a developed country. Second, गुलामी की मानसिकता की हर चीज से मुक्त होना है। थर्ड, विरासत पे गर्व करना है। फोर्थ, सबके कलेक्टिव एफर्ट से ही कुछ होना है। एंड फिफ्थ, सबको अपनी ड्यूटी भी निभानी है। अब अगर आप देखें, मैंने जस्ट आपको एक एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि हमारे माइंड में क्या रहता था। अब अगर आप उस ढंग से आए तो रिटेल सेक्टर में अगर ग्रोथ नहीं होगी तो कंट्री की ग्रोथ कभी भी वो पेस नहीं पकड़ सकती। अकॉर्डिंग टू द वेरियस एस्टिमेट्स फ्रॉम द अमेरिकन थिंक टैंक्स टू ब्रिटिश थिंक टैंक्स, इट इज एक्सपेक्टेड कि हमारी 2030-32 तक जो रिटेल कंजम्पशन है वो 1.8 से लेकर $2 ट्रिलियन तक बढ़ सकता है। उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या काम करना है, वो गवर्नमेंट ने कई ऐसे स्टेप्स उठाए हैं सो दैट द थिंग्स में बिकम स्मूथ। इवन इफ यू रिमेंबर, जहां तक मैंने पढ़ा था कि शायद अमेजन वर्ल्ड का अपना सबसे बड़ा ऑफिस खोलने जा रहा है हैदराबाद में। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया का रिटेल सेक्टर में, ऑन दी कॉन्ट्ररी आप दूसरी चीज देखिए, सबसे बड़ी रिटेल की कंपनी कौन? अलीबाबा। अब जो लोग चाइनीज सक्सेस स्टोरी की बात कहते हैं, जैक मा ला रहा था दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ, 28 पॉइंट कितने बिलियन डॉलर का था, और सडनली वो गायब हो गया। अब मैं एक और बात भी कहता हूं, अब आप देखिए, अभी वहां पर उनकी पार्टी के प्लेनरी सेशन में फॉर्मर प्रेसिडेंट को हाथ पकड़ के बाहर ले जाया जा रहा है। उस क्लिपिंग के अलावा कोई दूसरी क्लिपिंग है? नहीं है। स्टिल प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में चाइना हमसे 30 पॉइंट ऊपर है। हाउ लॉजिकल इट इज। मतलब जहां पर वुहान में 3000 लोगों की डेथ हुई, जो कि दिसंबर 2019 में विद द बिगिनिंग ऑफ द कोविड, आज तक उसके बाद कोई मरा ही नहीं। इतनी बेहतरीन प्रेस की फ्रीडम है, और उसके बाद आगे ये कहा जाता है कि साहब उस फ्रीडम इंडेक्स में वो हमसे ऊपर है। दूसरा, जैसे हंगर इंडेक्स की बात आती है, तो हमारे जस्ट नीचे कौन है? अगर आपने उस हंगर इंडेक्स में देखा, अफगानिस्तान। वो बांग्लादेश और श्रीलंका, जिनको हमने फ्री में फूड ग्रेन्स दिए इन द आवर ऑफ क्राइसिस, जो श्रीलंका जहां पर कि खाने के लिए रॉयट्स जैसा माहौल है, वो हमसे ऊपर है। अद्भुत होता है ना एनालिसिस। नो, इसीलिए आप ये समझिए कि बहुत सारी चीजों में आप उस कैप्टिव माइंडसेट से बाहर आइए जो वो लोग प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है उनका सैंपल सर्वे क्या था? 3000 फॉर ए कंट्री ऑफ 130 करोड़। यानी अगर हमारी जितनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें से अगर 100 भी लेते हैं सैंपल, तो वो उससे ऊपर होना चाहिए था। खैर, वो मैं नहीं जाना चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव दिस एग्जाम्पल दैट India is all set on a very glorious path ahead. We are having all the capabilities. After this COVID, post-COVID era, after this impact of Russia-Ukraine war, India is the only country which is sustaining and marching ahead with much better situation. आप लोग पढ़ते होंगे, देखिए इस समय यूरोप में कितनी महंगाई, कितनी बेरोजगारी है। Even last year, the IMF and the Bloomberg TV has given a report that the possibilities that which economy can go in the recession. तो अमेरिका में था 15 to 20%, चाइना का 15 to 20%, जापान का 20 to 25%, यूरोप का 25 to 30%, कोरिया का 30% चांस कि वो रिसेशन में जा सकते हैं, और उसने कहा इंडिया का 0% चांस। दिस इज द रोबस्ट सिचुएशन
lastly, I would like to say that you might have heard in the newspapers that in a decade, India will overcome China in terms of population. But I remember a program in the Discovery Channel around 10 years back. It said that by the mid of the century, India will take over China in terms of population, and if the economic policies remain in the right direction, it may become a bigger economy, not only bigger than China, maybe equal to US. So the phrase which he used, that if the things go in right direction in India, by the mid of this century, India will be the biggest and the richest nation on earth. ये important नहीं था. उसने आगे बोला, the place at which it remained most of the time in the history. ये सिचुएशन ज़्यादा important था, और just for the sake of your knowledge मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया कि पब्लिक इश्यूज जब इशू किए जाते हैं, आज सारी कंपनीज पब्लिक इशू लेती हैं. ये कॉन्सेप्ट तब आता है, कोई भी कंपनी में आदमी पैसा कब लगाता है, जब उसे कॉन्फिडेंस होता है कि ये कंपनी प्रॉफिट करेगी. विच वॉज द फर्स्ट कंपनी हु हैज सक्सेसफुली गॉट द पब्लिक इश्यूज इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. 1600 something 80 में, you know what the name of the company? It was Dutch East India Company. इंडिया में ही कॉन्फिडेंस था. And which was a company which had the biggest share at any point of time of the global trade. It was British East India Company. During their peak, they were controlling 50% of the global trade. और ये तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 150-200 साल पुरानी बात. इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, और मैं एक और भी बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 1840 के आसपास जब अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक एक रोड बनाई जा रही थी, तो उस पर क्वेश्चन हुआ कि इतने डॉलर्स इस पर खर्च हो रहे हैं, व्हाट इज द नीड? एंड द रिस्पॉन्स वाज गिवन इन द यूएस कांग्रेस कि इंडिया से ट्रेड करने का जो ईस्टर्न रूट है उस पर ब्रिटेन का कब्जा है, अटलांटिक वाले रूट से, तो हमको वेस्ट से ही करना पड़ेगा, और अगर हमें वेस्ट कोस्ट के ऊपर वो सामान उतरेगा तो एक पैसेज चाहिए उसको ईस्ट कोस्ट तक लाने को. तो अगर आप में से कोई जाकर सर्च भी कर लेगा तो यू नो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पैसेज? पैसेज टू इंडिया. जस्ट 1840 इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो इसलिए जो उसमें कहा गया, प्लेस एट विच इट रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री, ये कोई हवाई बात नहीं है. बस आप ये समझिए कि चीजें जिस दिशा में जा रही हैं, तो मैं फाइनली सिर्फ ये कहना चाहूँगा, वी वर हैविंग अ वेरी ग्लोरियस पास्ट, वी आर हैविंग अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर. बस जो प्रेजेंट है उसको हमें सही दिशा में संभाल के रखना है, और हमें वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर भी बनना है, इंटेलेक्चुअल पावर भी बनना है. मतलब लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए और सरस्वती जी की भी कृपा चाहिए, और लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं. तो फाइनली आई वुड लाइक टू से कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है. धन्यवाद. Thank you, Sudhanshu Trivedi, for in fact giving an insight about how the government is in fact looking and how the government is in fact very confident about what India's future. जा रहा है जो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक बनाया गया है, उसी के अंतर्गत हमने जल संसाधन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत वेबकॉस और एनपीसीसी ने मिलकर आज प्रिवेंटिव विजिलेंस पे कॉन्फ्रेंस की, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि विजिलेंस हमें रहना है. कल भी प्रधानमंत्री महोदय ने सीबीसी के कार्यक्रम में यही कहा था कि हमें टेक्नोलॉजी को प्रयोग करना है और विजिलेंस एक्टिविटीज़ को अच्छा बढ़ाना है, जिससे देश एक डेवलप नेशन में परिवर्तित हो सके 2047. जी. जल संसाधन में किस तरह से तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, इस बारे में अगर आप कुछ बता सकें. जल साधन में स्कैडा सिस्टम्स है, जियो टैगिंग है, इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा. अभी जो बच्चों को अवेयर कराया जा रहा है इस कार्यक्रम के ज़रिए, तो उन बच्चों को
क्या मतलब कहा गया, क्या करने को कहा गया कि वो अवेयर हो रहे हैं जल संसाधन के प्रति? जल संसाधन में सबसे बड़ी अवेयरनेस जो जल संसाधन में है कि हमें पानी को संरक्षण करना है। पानी की धीरे धीरे कमी हो रही है, तो जब तक बच्चे जो कल के नागरिक हैं उनमें ये प्रोत्साहन दिया गया है, उनमें जल संसाधन के प्रयोग की और कंजर्वेशन की संदेश दिया गया है, जिससे देश में आगे जागरूकता है। क्या राज्य सरकारों से भी इस मुद्दे पर बातचीत की गई है और राज्यों में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करा? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन विभाग की तरफ जल शक्ति मंत्रालय में जागरूकता का अभियान बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और देश के सभी जिलों में चल रहा है। सर, जिस तरह से एनजीओस काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? एनजीओस भी जल संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे हैं गांव-गांव में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जल संसाधन और जल संरक्षण में एनजीओस का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि वही लोग जनमानस से कनेक्टेड रहते हैं। सर, कुछ तकलीफ की बात की चुनौतियाँ हैं आज नई टेक्नोलॉजी में, क्या देखते हैं? टेक्नोलॉजी से ही विजिलेंस एरिया में बहुत इम्प्रूवमेंट हुए हैं। जैसे आपने देखा है पिछले दशक में भी टेक्नोलॉजी हर जगह प्रयोग हुई है और उससे प्रिवेंटिव विजिलेंस में हमें बहुत योगदान मिला है, इंटरनेट और बाकी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, थैंक यू सो मच।